सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। And today we are celebrating one of the most important day for entire nation and the world, I would say. When we talk about yoga, for many, many years, yoga has been practiced mostly by, let's say, in monasteries, let's say like monks, nuns, mostly with those spiritual people who are connected with the spiritual. Like myself in the monastery, when we were very little, we used to see our senior monks and masters, they always practice the yoga. And I used to think that this yoga is only will be practiced by only those learned masters or monks, but not by everybody. And now slowly, I would say, uh, by the what do you call it, great vision and kindness of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, with his great vision, now the yoga has become a very important and kind of a daily routine, not only practiced by just some people, but then it is something which is kind of a great gift for many beings, physically and mentally, especially the mentally, I will say. And especially we are in 21st century, and where the world is going on right now, which everyone can see. And if I talk about Ladakh also, so much of development, so many things happening. When the world turns so fast, and we all peoples, really, every being are going through lots of confusions, depressions, anxieties, anger, jealousy, and so and so. So for that, I think yoga is a great medicine to lead and to show the right path of peace, harmony, understanding, love, compassion. So I think this is very much, yoga is a very much need of our, especially for the young students, I would say young people who have just performed so well. And they are our future. They are our future leaders, they are our future parents. And we really need to guide them in the right way, in the proper way. So with academic, I think yoga is something which will also teach them to become a better human being, which we really need in this world. I myself have a school, and I always tell my students that I don't care how much you study, how much you become knowledgeable, how educated you become, how good your English or your Hindi or your mathematics or your grammar or I don't know, all the subjects. Because I always think that what we really need in this world is we need a good human being, not an intelligent or educated human being. We do have countless educated people. So I tell all our Ladakhi students and every students that I meet, I don't mind where your marks, like, we are very worried. The parents and children, we are very worried about exam, the marks. इसको कितना marks मिला?
फर्स्ट पोजीशन हो गया, किसी सेकंड पोजीशन हो गया, और बहुत अच्छा लाइक ऐसे मार्क्स मिलना चाहिए, नहीं तो अब कुछ नहीं है. And we all the students have so much pressure of marks and all these things, positions. In a way, maybe it's good, but in a way, I think it is very difficult, and it's really a burden for our students. So I tell my students that you study as much as you can, but more than that, I want you to be a happy and good human being. That is what we really need in this world, and what we need in Ladakh also. So we have enough of educated people, and they are the one who is destroying the entire world. So now, in order to become with your normal education or academic, now yoga is something like a medicine which can bring your mind, from anger to a compassion, from jealousy to a love, from pride to a humbleness. So I think yoga can play a very important role in every individual life. So thanks to Venerable Bhikkhu Sanghasena, for many years the yoga has been flourished here in Ladakh, and many of our youngsters, they are practicing yoga, which is a great initiative for the betterment of Ladakh and the nation and the world. Ladies and gentlemen, Shri Harsh Malhotra ji, Honorable Union Minister of State for Road, Transport and Highways, and Honorable Union Minister of State for Corporate Affairs. Thank you, sir. Thank you, sir. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीनतम और विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति को, जिसमें से योगा भी एक उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको इंटरनेशनल किया. योगा केवल हमारी शारीरिक समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है, ये हमारे अध्यात्म का प्रतीक भी है. और ये बात ठीक है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण योगा न केवल हमारे देश में बल्कि लगभग 180 देशों में यूनाइटेड नेशंस के उसको एक्सेप्ट करने के बाद, मानने के बाद 21 जून को मनाया जाता है. इसमें अक्सर ये नोशनल हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी और सब योग गुरुओं का भी ये मानना है और कहना है कि ये हमारी डेली प्रैक्टिस का एक अंग होना चाहिए. हमारे स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना है तो प्रतिदिन एक नियमित समय को लेकर के योगा की प्रैक्टिस की जानी चाहिए. आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, पर अधिकांश को ये जानकारी भी शायद ना हो कि हिमालय में जो हमारे सन्यासी रहते हैं, न केवल हिमालय में और भी बहुत जगह पर, क्योंकि भारत साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जो साधु सन्यासी रहते हैं वो केवल बर्फीली जगह पर भी योगा के कारण बिना किसी गर्म कपड़ों के या हीटर्स के या आग के बहुत अच्छे से रह पाते हैं. और उसका कारण भी केवल और केवल योगा ही है. और उसके कारण से ही उनकी आयु भी 100 वर्ष से भी अधिक होती है, और वो अच्छे स्वस्थ हेल्दी होकर के अपना जीवन जीते हैं. क्योंकि योगा में हेल्थ के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ जो अध्यात्म छुपा है, जो मेडिटेशन है, वो आपके शरीर को, मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है. विश्व का टॉप रूफ कहे जाने वाला लद्दाख, आज हम लेह में हैं और यहाँ पर एक हफ्ते के लिए ये योगा के वीक को मनाया जा रहा है.
और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा अभी गुरुजी ने बताया था कि सियाचिन पे भी 21 जून को योगा डे बहुत अधिक संख्या में हमारे वहां के सैनिकों और स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी तो इसको पिछली बार विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर भी लाखों लोगों द्वारा जो योगा किया गया था उसमें उपस्थित थे। इस बार भी उनके द्वारा इसी तरह का कहीं ना कहीं वो अवश्य जाते हैं योगा डे पर। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन भी करूंगा, विशेष तौर से जो हमारे यंगर साथी यहाँ बैठे हैं, कि आज से अभी से योगा को अपने जीवन में उतारिए, जिससे कि जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम इसको वेलनेस मान करके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही वेलनेस की तरफ हमें लेके गए हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूं कि योगा को अपने जीवन में उतारिए। तो प्रधानमंत्री जी तो बार बार अपने वक्तव्य में भी बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ओबेसिटी है और हमें अपने ऑयल इनटेक को भी 10 से 20% कम करना चाहिए। पर अगर उसमें हम योगा को भी अपने जीवन में इनकलकेट करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रह करके एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। शिक्षा आपको ज्ञान के उस मुकाम पे ले जाती है जहां आप एक अच्छी सोच को दूसरे के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वही वो दूसरा समझ रहा है, इसकी स्किल सीखनी पड़ती है शिक्षा में। अभी हमारे मित्र ने बोला, मुझे वो बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने कहा कि योगा इज अ जर्नी फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। योगा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट, जैसे गुरु जी ने बताया, मैं तो उन्हीं की बातों को एक बार फिर से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसको कैसे मीनिंगफुल जीवन के हर लक्ष्य को पाने के लिए इसको मीनिंगफुली कैसे हम अपने जीवन में लाएं। The universal appeal of yoga, meditation, and the message of peace. We are honored that you have journeyed across the oceans and continue to be part of this celebration on this top of Himalayas. इस फुल वाइब्रेशन के अंदर हम सभी बहुत बड़ी सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय सेवा संघ जी जिन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्टली यहाँ पे इनवाइट किया है, उनका मैं बहुत बहुत विद्यालय की तरफ से धन्यवाद करूंगी। मुझे एक सोच चली कि कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो उसके लिए सेवा भाव होना बहुत जरूरी होता है, और वही सेवा भाव के साथ उन्होंने इतना बड़ा संघ यहाँ पे तैयार किया है। तो निश्चित हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, जिनका जो सपना है कि हमारी भारत भूमि फिर से निरोगी भूमि बन जाए, हेल्दी एंड हैप्पी बन जाए, इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो अभी से इन छोटे छोटे बच्चों को जब मैं आते समय देख रही थी तो
तो मुझे सचमुच अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था कि किस प्रकार से वो अभी से उनके अंदर उन संस्कारों को डाल रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन हम सभी को पता है कि समय प्रति समय, चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो, कंट्री लेवल पर हो या अपने घर में हो, अनेक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं और हम सभी ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि हम सभी का माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आज हम सभी के साथ किसी भी घर में जाएंगे तो हमारे पास सोफा सेट है, डायमंड सेट है, डिनर सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो अपसेट है। इस बात को आप सभी मानते हो? यस या नो? यस। सभी का माइंड किसी न किसी बात के कारण माइंड अपसेट है। तो इसीलिए हैप्पीनेस जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए अभी जो ये 7 डेज का बहुत अच्छा कैंपेन यहाँ निकाला हुआ है, इसके अंदर जो हमें फिजिकली योगा और मेंटली योगा, फिजिकली योगा से तो हमें पता है कि हमारे शरीर जो है वो हेल्दी बन जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज देखो दुनिया के अंदर देखेंगे कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए डॉक्टर अवेलेबल होता है। कुछ भी बीमारी होती है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं जिससे हमारा माइंड जो है, हमारी बॉडी जो है रिकवर हो सकती है। लेकिन आज आवश्यकता है जो हमारा माइंड जो अपसेट है, हमारे माइंड के लिए कोई डॉक्टर्स नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें खुद से कनेक्ट करना सिखाती है, क्योंकि जब जो व्यक्ति खुद से कनेक्ट हो जाता है वही खुदा से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम सभी का जो सोर्स है, हमारे अंदर एनर्जी जो डालने वाला है, वो कौन है? वो है सुप्रीम सोल, जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी रीति से हमारे जो भी स्पीकर इसके पहले यहाँ आके गए और हमारे आदरणीय महात्मा जी ने और हम सभी भी इस बात को बहुत अच्छी रीति से एक्सपीरियंस करते हैं कि मेडिटेशन माना क्या है, जो हमें अपने खुद से कनेक्ट करना सिखाता है, माना खुद के ऊपर मेडिटेट करना सिखाता है, खुद के ऊपर अटेंशन देना सिखाता है। हमारा माइंड दूसरों के ऊपर आज अटेंशन देता है, लेकिन क्या कभी हम अपने खुद के ऊपर, हमारे पंच कर्मेंद्रियों के ऊपर, हमारे माइंड में जो चलने वाले थॉट्स है, क्या उसके प्रति हम कभी जागरूक हुए? और मेडिटेशन ये ऐसी प्रोसेस है जो हमें अपने इनर पावर को बढ़ाता है। Actually, I want to thank the Kanyan sir who is leading this cycling expeditions from Rizamla to Kargil. Kanyan sir, what is your name? Where is Kanyan sir? Guruji to kindly felicitate Dr. Satish ji and the entire team with a special the festival commemorative souvenir